Hello student, welcome back. Now in this session we will be discussing about uses of dimensions. So till last lecture we were discussing about dimensions, and before that we discussed about the parallax method of obtaining the length, and in a lecture before that we also discussed about fundamental unit, derived unit and supplementary unit. So let us have a quick revision of whatever we have discussed so far in this particular lesson. The first thing that we discussed was what is science. So we say science is systematic study of knowledge. Physics is study of everything around us, or study of all natural phenomena is physics. Then for any scientific study we need to have measurement, and any measurement will require two things, a unit and a number. So numbers we already know, so we started discussing about unit. Then we defined a unit. What is a unit? A unit is a standard of reference used for the measurement of physical quantities. For a good unit there are certain requirements, like it should be universally acceptable, it should be easily reproducible, it should not vary with time and space, it should be easily available. These were certain or important characteristics of a unit. Then we studied physical quantity. Now what is a physical quantity? Any quantity that can be measured is a physical quantity. We divided physical quantity into three types depending upon how we measure them. If a physical quantity does not require, or it does not depend upon any other physical quantity for its measurement, we call it as fundamental quantity, and the corresponding unit was called as fundamental unit. There are 7 fundamental quantities, namely length, mass, time, temperature, amount of substance, luminous intensity and electric current. So it was LMT tail, and their corresponding units are fundamental units. Like for length we have meter, for mass we have kilogram, for time we have seconds, for amount of substance we use mole, for luminous intensity candela, for temperature I use Kelvin, and for current of course we use amperes. Then there are two helping units or the supplementary units, namely the plane angle and solid angle. Now plane angles are measured in radians, 2D wale angles, and solid angle is the angle made by an area at a point. So that is measured in steradians. Plane angle is S is equal to r theta, so it is arc length upon radius. Solid angle is given by the formula perpendicular area, or you can say ds divided by r square. Okay, then all the other quantities are termed as derived quantities. So derived quantities are the quantities which depends on one or more fundamental quantities for its measurement, are known as derived quantities, and their corresponding units are known as derived unit. While writing units, there were certain important things that we need to follow. First, units should never be written in plural forms, centimeters, meters, etc. There should not be full stop or comma after we write the unit. Even if a unit is named after a scientist like Newton, Joule, Watt, etc., if you're writing the full name, then all the alphabets in the unit should be written small. If you're using a symbol, then only a capital letter. Then we discuss parallax method for the measurement of length. We discuss few numericals based on the same. Then I guess in the third lecture we started with dimensions. What are dimensions? Dimensions are the powers to which the fundamental units are raised to get unit of that physical quantity. We found dimensions for length, mass, time, area, volume, speed, displacement, speed, velocity, acceleration, force, work, power, pressure, then kinetic energy, potential energy, moment of inertia, linear momentum, electric charge, electric potential, resistance. For these quantities we found dimensions. Then we also had 3 questions: gravitational force, g m1 m2 by r square, electrostatic force 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, and the Lorentz force F is equal to qvb. So this is what we had done so far in this particular topic, or you can say chapter. Now in today's session I am going to discuss about uses of dimensions. So this lecture is for uses of dimensions. I hope you all can see what is written on the board. I'll just check it for myself because we are taking in new setting, uses of dimensions. Okay, I'll write a little bigger in size so that each one of you can easily see it. Uses of dimensions.
So basically there are three uses of dimension, students, and in this session I think we'll discuss first for sure, and maybe if time permits the second one also. The first use of dimension is to check correctness of given equation, or you can say given formula. So होता ही है बच्चों कि आप डायमेंशंस के मेथड को यूज करोगे और एक दिया हुआ इक्वेशन होगा, वो डायमेंशंस के मेथड से करेक्ट है या नहीं ये चेक कर सकते हो, या कोई फॉर्मूला राइट है या नहीं है वो आप चेक कर सकते हो डायमेंशंस के वाइज से. अगर आपको बच्चों याद हो तो डायमेंशंस वाले मेथड में एक प्रॉब्लम था. याद है जब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस फाइंड किया था तो हाफ mv स्क्वायर था, आपको रिकॉल हो रहा है? तो मैंने कहा था ये हाफ डायमेंशन में कुछ काम का नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यानी उसमें न्यूमेरिकल जो नंबर है वो करेक्ट है या नहीं वो हम चेक नहीं कर सकते. ये उसका लिमिटेशंस भी है, मैं और अच्छे से समझाता हूँ. अगर मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर, हालांकि फॉर्मूला रॉन्ग है, पर अगर डायमेंशन से चेक करोगे डायमेंशंस राइट आते हैं. अगर वो 4mv स्क्वायर भी करूँ तो भी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वही आने वाला है. अच्छा मैं लिखकर आपको समझाता हूँ बच्चों. जब हमने काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फाइंड किया था, सो हाफ mv स्क्वायर से मैंने कुछ तो आंसर लाया था. अगर मैं इसको ये भी लिखूं ना बच्चों 4mv स्क्वायर, तो भी सेम डायमेंशंस आने वाले. मतलब मेथड ऑफ डायमेंशंस नंबर्स को यूज नहीं करता है या नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है. इसलिए जब कभी भी आप बोलो ना बच्चों कि हमने ये इक्वेशन चेक किया है, तो सिर्फ, और अगर आप डायमेंशन यूज कर रहे हो तो आपको बोलना चाहिए दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है ये जो आपको याद रखनी, कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो, पर उल्टा हमेशा राइट होगा. अगर कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है तो गारंटी कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा. ये बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे बच्चों के सर के ऊपर से जा रही है, कोई टेंशन मत लो, आप सिर्फ मेरे साथ रहो. मैं सिर्फ ये बोलूंगा बच्चों कि हम इक्वेशन को चेक कर रहे हैं डायमेंशंस की मदद से. ठीक है, लेट्स ट्राई. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वी विल बी टेकिंग वन और टू क्वेश्चंस. फाइन. सो सपोज उन्होंने एक इक्वेशन दिया और मैं वो इक्वेशन लूंगा जो मोस्टली हम सब जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट, काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 1. सपोज इक्वेशन इज गिवन v इज इक्वल टू u प्लस at. हम सब जानते हैं कि ये इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन. अब हमको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है. तो बोलो सर अगर जानते हो तो क्यों चेक करना है? बच्चों ये जानते हो ना, इसलिए आप ऐसा बोलो. कई बार ऐसा होगा कि आपको इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन डिराइव करना होगा, तब ये मेथड काम में आएगा. सो नाउ v इज इक्वल टू u प्लस at. सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चेक करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन वेयर ऑल द टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग. मतलब इस फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनका यूजुअल मीनिंग है, मतलब रोज जो मीनिंग होती है वो. सो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहां पर v इज फाइनल वेलोसिटी. ओके, लेट मी जस्ट सी वेदर यू कैन see this particular color. Okay, so it is visible. Final velocity. U is initial velocity. A is acceleration. And T is time. So आपको ये चेक करना है कि ये जो equations दिए गए वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. So what is the process? What is the method? Method is, students, you will find dimensions of all the quantities, starting with quantities on the left hand side and then quantities on the right hand side. So step 1, find dimensions of, okay, find the dimension of LHS. So if you see on the left hand side initial velocity है, so velocity यूनिट क्या थी बच्चों? मीटर पर सेकेंड. हाँ, ये कभी मत भूलना अपना मेथड. वेलोसिटी फंडामेंटल या डिराइव्ड? डिराइव्ड. डिराइव्ड है तो फॉर्मूला चाहिए.
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। क्या ये फंडामेंटल है? यस सर। क्या ये भी फंडामेंटल है? यस सर। तो क्या करोगे आप? चुपचाप एल एम टी। व्हाट इज पावर ऑफ एल? 1, पावर ऑफ एम 0, पावर ऑफ टी -1। These are dimensions on left hand side. L1, M0, T -1. Step 2. Let us find dimensions on right hand side. Find dimension on right hand side. अब यहां पर ना बच्चों एक डाउट आता है, सर राइट हैंड साइड का पूरे का एक साथ फाइंड करना है? कभी नहीं बच्चों, यू टेक इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब ये एक क्वांटिटी होगी आपकी और ये क्वांटिटी होगी, जितने भी टर्म्स है ना बच्चों, टर्म्स तो एक साथ वाले, उनका डायमेंशन एक साथ निकालोगे। ठीक है, यहां पर u का अलग से और a का और t का अलग से मत करा, a t का एक साथ, ये टर्म एक साथ है। सो स्टेप 2 में अगर हम u के लिए फाइंड करें, u क्या था? सो u वाज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी अगेन मीटर पर सेकेंड। टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, क्या बोलेंगे? चुपचाप LMT। चलो घर बैठे बैठे बोलेंगे डायमेंशन क्या आएंगे इसके? Yes, L⁻⁴, M⁻�0, T⁻⁻1। ओके, अब बचा है AT। फॉर AT, A into T is acceleration into time. Acceleration into time. Excuse me, let me write it once again. Acceleration into time. Acceleration का यूनिट अगर आपने रिवाइज किया है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू टाइम के लिए क्या लिखोगे? सेकेंड्स। सो एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो और अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो उसका डायमेंशन क्या आएगा? L⁻⁴, M⁻�0, T⁻⁻1। स्टेप 3 में क्या चेक करना होता है बच्चों? आप ये चेक करो कि अगर दोनों तरफ के डायमेंशंस इक्वल है, सो एज डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, both sides of equation are same, both sides of equations are same। देखो यहां 1 0 -1, 1 0 -1, 1 0 -1, दोनों तरफ के डायमेंशन सेम है, therefore given equation is dimensionally correct। given equation is dimensionally correct। देख सर ने क्या लिखा है? डायमेंशनली करेक्ट। मैं बच्चों यहां लिख लेता हूं, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट नहीं लिखना है, डायमेंशनली करेक्ट है वो। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं वही बताता हूं। अब आप जानते थे कि ये फॉर्मूला राइट है। सोच अगर कोई मस्ती करे और यहां पर ऐसा लिख दे v इज इक्वल टू यू प्लस AT को सपोज वो कर दे 280, 2 इंटू A इंटू टी, तो आप क्या करोगे? v का डायमेंशन फाइंड करोगे, u का डायमेंशन फाइंड करोगे। लेकिन जब 280 का फाइंड करने जाओगे तो आपको 2 का तो फाइंड करना ही नहीं होता, बिकॉज 2 इज अ नंबर। आप 80 का फाइंड करके यही आएगा। सो वापस से डायमेंशंस के हिसाब से क्या तीनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। और अगर डायमेंशन सेम आ रहे हैं तो इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए। पर आप जानते हो कि ट्रू फॉर्मूला, न्यूमेरिकली राइट फॉर्मूले में यहाँ 2 नहीं होता, सिर्फ 80 होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन, या काइनेमेटिकल इक्वेशंस का फर्स्ट इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 में से पहला इक्वेशन। सो अगर यहाँ पे 1080 लिखा तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट ही आने वाला है, क्योंकि डायमेंशंस में हम 1000 नहीं लिखने वाले, याद है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशंस वाइज करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगा। तो बच्चों अगर कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है, याद रखना वो डायमेंशनल भी करेक्ट होगा ही होगा। नाउ प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट क्विकली। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। Okay, now I am going to give you one question to try by yourself. आप खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए और मुझे बताइए इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सो अभी भी हम डायमेंशन का फर्स्ट यूज डिस्कस कर रहे हैं टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। क्या लिखूं मैं? हाँ ये वाला दूसरा इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
चलो चेक करो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आप अपने मन में स्टेप्स बिठा लो बस। अच्छा वापस मैं आपको बता दूं पहले वाले क्वेश्चन से, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, t इज टाइम, u इज इनिशियल वेलोसिटी, s नया टर्म है तो यहां पर s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। फाइन, आप अपने पेस पर घर पर ट्राई करो और मैं यहां पर अभी आपके सामने सॉल्व करता हूं, देन यू कैन मैच। ओके, सो पहला मैंने अकेले नहीं किया, दूसरा मिलके कर रहे, थर्ड शायद मैं आपको करने दूं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड स्टेप 1, फाइंड डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पर कौन है, डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसका डायमेंशंस क्या लिखा जाएगा, l रेस टू 1, m रेस टू 0, t रेस टू 0, सब साथ में। ये आसान था। अब स्टेप 2 में राइट हैंड साइड पर जाओगे आप, राइट हैंड साइड पर कौन कौन है, u इंटू टी है, ut एक साथ लिखेंगे मैंने कहा था, हाँ वो टर्म एक साथ लेना। सो अभी इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है बच्चों, ये u का यूनिट लिखा, इनटू टाइम का यूनिट क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, तो सेकेंड कैंसिल हुआ तो बचा मीटर। सो u2 के लिए डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बच्चों, बोलो, l रेस टू 1, m रेस टू 0, t रेस टू 0। सो दीज आर डायमेंशंस फॉर ut। अब स्टेप 2 में एक स्टेप बाकी है ना, एक क्वांटिटी बाकी है, हाफ AT स्क्वायर। याद है बच्चों, हाफ तो एक नंबर है और नंबर के डायमेंशंस हम डिस्कस नहीं करते, तो हाफ होगा भी तो भी हम गिनेंगे नहीं उसको या उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड स्क्वायर, सॉरी टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, पर यहाँ पे सेकेंड टाइम का स्क्वायर तो सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। सो इसका यूनिट आ गया मीटर, तो 80 स्क्वायर के लिए मेरे डायमेंशंस क्या होंगे बोलो, मैं लिखूंगा l रेस टू 1, m रेस टू 0, t रेस टू 0। देखो बच्चों फिर से एक बार क्या हो रहा है, इसका, इसका और इसका, तीनों के डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, सेम। सो क्या लिखोगे बोलो घर बैठे बैठे, एज डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन are same, therefore given equation is dimensionally correct। so फिर से डायमेंशनली, अरे बच्चा अगर वो हाफ अगर 4 भी होता तो भी तू राइट कहता। सो हमको हाफ 4,000 करोड़ वी डोंट नो, सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अभी क्लियर, सिंपल एकदम, छोटे बच्चों ऐसा, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, चेक कर लो सारे डायमेंशंस इक्वल है तो आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो नाउ आई गिव यू वन, एक मैं आपको दे रहा हूं जो आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई दिस। चलो इक्वेशन ऐसा है, v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 2as, थोड़ा घुमा देते हैं, u स्क्वायर प्लस 2as का स्क्वायर। चलो अब ट्राई करो। अच्छा वापस से v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, पहले दो क्वेश्चन में बता चुका हूं। a इज एक्सेलरेशन and s इज डिस्प्लेसमेंट। स्टेप 1 आप खुद से सॉल्व करो, मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं। स्टेप 1 लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस, v यानी कि वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है, स्क्वायर तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो गया। फंडामेंटल है तो चुपचाप डायमेंशंस क्या लिखे जाएंगे बताइए बच्चों आप मुझे, l रेस टू 2, m रेस टू 0, t रेस टू -2। फॉलो। अच्छा अब राइट हैंड साइड पे स्टेप 2, इन स्टेप 2 प्लीज सी द क्वांटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड। u स्क्वायर, u क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है,
तो यू स्क्वायर क्या हुआ, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो फिर से दोनों फंडामेंटल है, तो यू स्क्वायर के डायमेंशंस बोलो बच्चों, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, L2 m0 t⁻²। बच्चों अपना प्रॉमिस याद है ना, आप सारे फॉर्मूले लिख रहे हो रोज। जिस दिन हम लाइव मिलेंगे सबसे पहले फॉर्मूले पूछूंगा मैं। चल बता, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। प्रेशर नहीं याद आ रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड, चलो यूज कर। अब 2a² का चाहिए। सो 2a² में से 2 तो नंबर है, डायमेंशंस का मेथड नंबर को इन्वॉल्व नहीं करता है। तो अब यहां पर हम एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। सो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आ रहा है बच्चों, इसका यूनिट आ रहा है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, यानी मीटर का क्यूब अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। दोनों फंडामेंटल यूनिट आ चुकी है। सो क्या लिखोगे, L⁻³ m⁻⁴ t⁻²। ये है डायमेंशंस ऑफ 2a²। 2 की जगह 4 होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब मुझे बताइए, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये है, राइट हैंड साइड का एक डायमेंशन मैच हो रहा है, पर ये वाला मैच नहीं हो रहा है। अगर कोई भी एक मैच नहीं होना बच्चों, तो भी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो आपका डायलॉग क्या आएगा, बोलो, एज डायमेंशंस on both sides of the equation are not same, therefore given equation is dimensionally incorrect। और अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो न्यूमेरिकली तो सवाल ही नहीं वो करेक्ट होगा। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट, न्यूमेरिकली करेक्ट कंप्लीटली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं हो। सो ये था बच्चों फर्स्ट यूज ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशंस टू चेक डायमेंशंस, टू चेक करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस में भी मिल सकते हैं। ये क्लियर है? प्लीज आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। ओके, अब we shall discuss, as I told you, second use of dimension। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सेकेंड यूज, और उसके लिए आपको थोड़ा सा इंडाइसिस या मल्टीप्लिकेशन के जो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है ना? चलो अभी एक सेकेंड एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं टू फाइंड रिलेशन बिटवीन यूनिट्स of same physical quantity। To find relation between units of same physical quantity in different systems। सर ये क्या लिखा है, टेंशन मत लो। टू फाइंड रिलेशन, ये समझा, बिटवीन ये समझा, यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अभी मान लो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, आई टेक एन एग्जांपल। तो फोर्स क्या बन गई, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो ये फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इस फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन भी होता है और वो डाइन भी होता है। सो इट इज न्यूटन और इट इज डाइन। अब न्यूटन उसका एसआई सिस्टम में यूनिट है और ये उसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट है।
अब हम क्या करें, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसकी दो यूनिट्स है उनके बीच का रिलेशन, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ये आप फाइंड कर रहे हो। अब जिसने पढ़ रखा है उसको पता है रिलेशन 10:5 है। सो हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग सिस्टम में जो यूनिट्स है उनका रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। क्लियर हुआ? एक बार वापस से, हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो यूनिट है उनका रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो टू फाइंड रिलेशन बिटवीन यूनिट्स of same physical quantity in different system of units, to find relation between units of same physical quantity in different systems, ठीक है। ये 1 न्यूटन इक्वल टू 10:5 डाइन, या फिर 1 जूल इज 10:7 अर्ग, ऐसा कुछ पता है? नहीं पता। या 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज, नहीं पता है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन, तो ये कैसे करते मैं बताता हूँ। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इजी है बच्चों, स्टेप फॉलो करने और ध्यान से सुनना। ओके, सो अगर क्वेश्चन है शो दैट 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, ये प्रूव करने के लिए आता है। तो जो भी प्रूव करना है ना उसको अज्यूम कर लो, मतलब you assume that 1 न्यूटन इज x डाइन, फिर बहुत सारी मेहनत कर और x की वैल्यू 10:5 लेकर के आ जा, सॉल्व हो गया ना? नहीं समझे? You want to prove that 1 न्यूटन इज 10:5 डाइन, फर्स्ट स्टेप assume that 1 न्यूटन इज x डाइन, use dimensions to get value of x and try to show that x is 10:5, हो जाएगा ना? सो फर्स्ट स्टेप तो आसान है, क्या? assume। स्टेप 1 एग्जाम में मत लिखना बच्चों। स्टेप 1 जो प्रूफ करना है उसको अज्यूम करो। सो लेट अस अज्यूम दैट 1 न्यूटन इज x डाइन। क्या समझ में आया? अब ये अज्यूम करो। दूसरा स्टेप 2 में बच्चों आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी की यहां बात हो रही है उसको पहचानो। गया ऊपर से। न्यूटन और डाइन किसके यूनिट है? क्या न्यूटन और डाइन फिजिकल क्वांटिटी है? नो सर, न्यूटन एंड डाइन आर द यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होंगे ना, किसके, वो पहचान। सो आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। तो न्यूटन और डाइन किसके है? फोर्स के। ओके, सो आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी एंड फाइंड इट्स डायमेंशंस। सो फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करो, उसके डायमेंशंस को फाइंड करो। तो बोलो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कौन है? फोर्स। समझ में आया? तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप पढ़ चुके हो बच्चों, किलोग्राम, अभी यूनिट लिख रहे हैं हम। सो इट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बच्चों एसआई सिस्टम में, सेम भी सीजीएस सिस्टम में क्या होगा पता? आपको पता नहीं है एसआई में और सीजीएस में। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ऐसा ही हुआ। सीजीएस में क्या होगा? ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकेंड। समझा? सो ये इसका डायमेंशंस क्या आएगा फिर फोर्स का? मैं यही लिख लेता हूं। आप ऐसे डॉट मत करना, नीचे लिखना। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? बोलो भाई। एल रेस टू, अच्छा चुपचाप, सॉरी भूल गया मैं, चुपचाप LMT। एल का पावर 1, M का पावर 1, T का पावर -2। ये उसके डायमेंशन है। थर्ड स्टेप, बोलो। पुट डायमेंशन इन स्टेप 1। सॉरी बच्चों, मैं छोटा लिख रहा हूं, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। पुट डायमेंशन इन स्टेप 1। चलो स्टेप 1 ये था, 1 न्यूटन। सो 1, नाउ व्हाट इज न्यूटन? बेसिकली न्यूटन ऐसा यूनिट है और डायन सीजीएस यूनिट है। समझा तो मैं आपको, डरो मत। आप क्या करो, चुपचाप डायमेंशन कॉपी करो। तो न्यूटन की जगह पर L⁻⁴ M⁻⁴ T⁻² इज इक्वल टू x।
और डाइन की जगह पे भी सेम एल रेस टू वन एम रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू। अब एक बच्चे को डाउट आएगा, सर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। वो एक बच्चे को डाउट आएगा, आप अब बड़े हो चुके हो थोड़े से। अच्छा पहले बता ये समझा, जो प्रूव करना अज्यूम कर ले, फिर आइडेंटिफाई करे दोनों किसके यूनिट है, उसका डायमेंशन फाइंड कर, डायमेंशन उठा के 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे। पर खुद से ये बात कर कि जब आप ये लिख रहे हो डायमेंशन न्यूटन को हटा करके, तो याद रखना यहाँ पे लेंथ इज इन मीटर, मास इज इन केजी, टाइम इज इन सेकेंड। यहां पर लेंथ इज इन सेंटीमीटर, मास इज इन ग्राम एंड टाइम इज इन सेकेंड। दैट इज द रीजन वाई बच्चों मैं इनको सफिक्स दे देता हूं यहां पर, नहीं तो आप वही कैंसिल कर लोगे। जितना भी 1 1 1 यानी एसआई सिस्टम, 2 2 2 सीजी सिस्टम, ये जो सफिक्स है नीचे 1 1 1 1 1 1 और 2 2 2, ये डिस्टिंग्विश कर रहा है कि ये L1 मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, अदरवाइज विल कैंसिल। ये बता रहा है ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। ओके सर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देने ये वाला स्टेप, एक्स विल बी इक्वल टू 1 तो चलो नहीं लिखते, एल रेस टू 1 ओके फर्स्ट समय तो आराम से करते हैं, एम रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 2, फिर 1 1 1 क्या बताएगा ये, ऐसा ही। कंफ्यूज मत करना, डिवाइडेड बाय, ये जाके डिवाइड हो गया, बोलो क्या, एल रेस टू 1 एम रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 2, 2 2 2 मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड्स। अब सारे लेंथ के टर्म एक साथ, मास के टर्म एक साथ और टाइम के टर्म एक साथ। चलो क्या लिखेंगे, एक्स विल बी इक्वल टू, बहुत इजी है बच्चों, L1 अपॉन L2 रेस टू 1। मेरे बच्चे डर गए, L का टर्म एक साथ 1 2, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1। सोच अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो सच्ची बोला ऐसा नहीं लिख सकता एक्स अपॉन वाई द होल स्क्वायर, वही है ना, L1 बाई L2, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर, तो द होल रेस टू 1। अच्छा लगा, वेरी गुड। अच्छा मास के लिए बता, बैठे बैठे बता, वेरी गुड, m1 बाई m2 रेस टू 1, और टाइम का बता, t1 बाई t2 रेस टू माइनस 2। सच्ची बच्चों क्लियर है। अच्छा ये बताइए, सच्ची बताइए, समझा, जो प्रूफ करना अज्यूम कर ले, फिर आइडेंटिफाई करके कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशंस फाइंड कर, डायमेंशंस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर, इसको कैंसिल नहीं करे, इसलिए एसआई में 1 1 1 सफिक्स और सीजीएस में 2 2 2, फिर डिवाइड कर ले, एक्स को अलग कर ले, फिर लेंथ एक साथ, मास एक साथ, टाइम एक साथ। ओके, सो नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सिंपली राइट द वैल्यूज। सर क्या बोल रहे हो, देख बेटा, ये लिखा जाएगा x इक्वल टू L1, 1 यानी मीटर में, तो आई विल से इट इज मीटर, और ये नीचे यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर रेस टू 1, मास किलोग्राम, नीचे ग्राम रेस टू 1, ये सेकेंड, ये भी सेकेंड रेस टू माइनस 2। पता है ना टाइम का SI CGS M के सब सेकेंड ही है। सो ये तो पक्का हो गया कि सेकेंड सेकेंड कैंसिल एंड दैट टर्म इज ऑफ नो यूज। भाई ये 1 रेस टू माइनस 2 इज ऑल्सो 1 ना। अच्छा अब मुझे याद दिला बच्चों, मीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन पता होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लिए, कहीं तो लिख ले, 1 मीटर एज 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोग्राम एज 1000 grams. So 1 meter I am going to write as 100 centimeter upon centimeter. सर क्या क्या ये जादू वाला स्टेप, सेकेंड क्या ये समझा, मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एज इट इज, किलोग्राम को क्या लिखेगा बता, वेरी गुड, 1000 ग्राम और नीचे भी ग्राम, 1 और 1। अब क्या हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या देख, यहाँ 100 रेस टू 100 हुआ एंड 1000 रेस टू 1 इज ऑल्सो 1000, सो 100 इंटू 1000। अब जीरो काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, तो x का वैल्यू हो गया 10:5। ओ हो, सो जैसे x का वैल्यू 10:5 आया, सब्स्टिट्यूट दैट इन इक्वेशन 1, यू गेट 1 न्यूटन इज 10:5 डाइन। एक क्विक रिकैप करिए बच्चों इसका। हाँ चल क्या करेंगे, जो पहले आपको प्रूफ करना है उसको अज्यूम कर लो, फिर ये देखो कि जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, सो न्यूटन और डाइन फोर्स है, डायमेंशंस फाइंड कर ले, वो डायमेंशन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर ले, सफिक्स नहीं होता तो आप कैंसिल कर लेते हो,
इसलिए 1 1 1 2 2 2 करोगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लो, लेंथ एक साथ, मास एक साथ, टाइम एक साथ। लेंथ एसआई सिस्टम में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, एसआई में किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 1 1 रेज टू माइनस 2 1, इसलिए लिखा नहीं। मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन, किलोग्राम टू ग्राम का कन्वर्जन, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम कैंसिल, 100 into 1000, 100 into 1000 is 10⁵. So now you can put there and get your answer. Followed? Please pause the screen and copy it quickly. जल्दी कॉपी करो बच्चों. Alright student, now I am going to give you one question to solve by yourself. And the question is, 1 joule is 10⁷ erg. ये आपको प्रूव करना है. 1 joule is 10⁷ erg. You have to prove this. So first step you'll assume. जो प्रूफ करना है वो assume कर लो. आप घर पर अपने पेज पर भी सॉल्व कर सकते हो. So I'll assume 1 joule to be equal to x erg. Then identify the physical quantity. बोलो जूल और erg किसका यूनिट है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. सो जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और यू कैन से जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क. वर्क भी बोल सकते हो. सो चलो वर्क से करते हो. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो यूनिट वाइज क्या लिखा जाएगा? मास का केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट का मीटर. ध्यान दे, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क और काइनेटिक एनर्जी. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर. सो अब इसका डायमेंशन अगर आप फाइंड करोगे या लिखोगे, देखो क्या आएगा बच्चों, सब कुछ फंडामेंटल है तो चुपचाप L⁻², M⁻⁻1, T⁻⁻². ये हो गए वर्क के डायमेंशंस. वर्क के डायमेंशंस. अब ये आपको यहां कॉपी करना था, याद करो स्टेप्स. ओके, अगर मैं वैसे करता हूं, सो L2 M1 T⁻². सो ये 2 और ये भी 2. सफिक्स तो वही रहने वाले बच्चों, 1 1 1 2 2 2. अदरवाइज आप गड़बड़ कर दोगे. ठीक है, फिर कहां चेंजेस आएगा? सोच. मेरे लिए इजी है बच्चों, आप खुद की नोटबुक में कॉपी कर रहे हो, सो यू कैन गो एज पर योर ओन आई नीड टू से पेस. फॉर मी इट इज जस्ट टू इरेज एंड राइट इट देयर. यहां तक साथ में चल. सो ये 2 पावर, ये भी पावर 2. सो ये होना चाहिए 2, ये भी होना चाहिए 2. बाकी दोनों सेम है. सोच, तो यहां पर भी पावर क्या हो जाएगा? 2. मैं कह रहा हूं मेरे लिए इजी है बच्चों, आप अपने पेस पर करो. m का पावर 1 1, सेकेंड कैंसिल, केजी मीटर रेज टू 1, दिस विल बी रेज टू 2. सो यहां पे सेंटीमीटर मीटर कैंसिल, कन्वर्जन किया मैंने, देख ले. मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 2, दैट विल बी 1. सो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर. सो थोड़ा सा मुझे इसको समझाना पड़ेगा. 100 स्क्वायर मीनिंग व्हाट? स्क्वायर मतलब वो नंबर 2 बार लिखोगे आप, तो x विल बी इक्वल टू 100 into 100 into 1000. Now count the number of zeros. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. So your x is 10⁻². So that I got the answer. है ना? So जब स्टार्ट करते ना डर लगता है, अरे क्या है, टफ है, नहीं समझेगा. बट मैंने कहा था ये आसान है, आप इजीली कर लोगे. क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना?